My dear students, welcome to Mathological. Let us start second session on number system. And if you have not watched the first session, then make sure to check out that as well. I will pin the link in the description. Okay. So agenda of the day is factors and multiples. And then we'll discuss about prime numbers. So let us say there is a number 12. Now we can make 12 by using 1 and 12. We can multiply 1 and 12. So 1 into 12 is 12. We can also make 12 by multiplying 2 and 6 or by multiplying 3 and 4. So we can write 12 as a product of 1 and 12, as a product of 2 and 6, as a product of 3 and 4. So all these numbers with which we can compose 12, very important, with which we can compose 12 are called factors of 12. So what is a factor? For example, many of you might have heard about factors of production. ठीक है, प्रोडक्शन में किन फैक्टर्स का यूज होता है जिनके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं? रॉ मटेरियल, लेबर, उनसे सिमिलरली these particular numbers, for example, अगर हम एग्जाम्पल लें 1 और 12 का, तो 1 and 12 multiplied produce 12. That is why 1 and 12 are called factors of the product 12. The 12, the number is the product. ठीक है, 12 is the product and these are the factors. 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the factors of the product 12. ठीक है, we can also say that 12 is divisible by 1, 2, 3, 4, 6 and 12, and all the numbers by which 12 is divisible are called factors. Also, if you observe properly, factors always exist in pairs. What do we mean by that? That to make 12 we need two factors, exactly two factors, always. ठीक है, so factors always exist in pairs. हाँ, ये जरूर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर अपना लिया 25, तो 25 कैन बी कंपोज्ड बाई 1 and 25 और इट कैन ऑल्सो बी कंपोज्ड बाई 5 into 5. So since 25 is a perfect square, that is why in one case both the factors will be same. इन जनरल ऐसा होना जरूरी नहीं है, जैसे 12 के केस में ऐसा नहीं है, बट हाँ परफेक्ट स्क्वायर के केस में एक पेयर ऐसा जरूर होगा जहां पे कि देयर विल बी टू नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली सेम, बट फैक्टर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. Another property that 1 is a factor of all the numbers. Factor of all the numbers. And all this discussion is only about natural numbers. Factors के बारे में बात करें, multiples के बारे में डिस्कशन करेंगे. All this discussion is only about natural numbers. So 1 is a factor of all the numbers. Also, a number is factor of itself as well. Factor of itself as well. All the factors, अगर हमारा नंबर n है तो factor will always be less than equal to n. The factor will always be less than or equal to that number, because वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर है, इसलिए इक्वालिटी भी रहेगा और बाकी सारे के सारे फैक्टर्स छोटे होंगे उस नंबर से. So all the numbers, all the factors will always be less than equal to that particular number. And factors will always be finite. Factors of a number are always finite. They are always limited. Okay. Second thing is multiples. For example, if we are taking 12 as a number, so 12 is 3 into 4. So we can conclude that 12 is a multiple of 3 and 4. A multiple of 3 and 4. Similarly, if we take number 48, so 48 is 12 into 4, or 48 can also be written as 24 into 2. So 48 is a multiple of
12, 4, 24 एंड 2। ठीक है, सो मल्टीपल के बारे में बात करें, सो मल्टीपल क्या होगा हमेशा, सिंस 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 और 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, 4, 24 एंड 2, सो अ मल्टीपल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर जिसके मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 48 मल्टीपल है 12 का, 4 का, 24 का, 2 का। 48 अपना खुद का भी मल्टीपल है बिकॉज 48 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 48 into 1, so it is a multiple of itself as well. So multiple will always be greater than or equal to that number. इक्वालिटी तब होगा जबकि हम उस पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहे हैं, अदरवाइज मल्टीपल विल ऑलवेज बी ग्रेटर। ओके, ठीक है, सो एनी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड 1। अपना खुद का भी मल्टीपल होगा और 1 का भी मल्टीपल होगा। Second thing, multiples are always infinite. ये थोड़ी सी बात हो गई मल्टीपल्स की, बाकी मल्टीपल्स पे डिस्कशन करेंगे एलसीएम एचसीएफ में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो बैक टू फैक्टर्स। Now let us observe some starting natural numbers. Let us say talking about 1. So 1 के कितने फैक्टर्स होंगे? The only factor of 1 is 1. The only factor of 1 is 1 only. If we talk about 2, 2 will have 2 factors. एक तो 1 होगा और second 2 itself. 3 के केस में 1 is a factor. The second factor is 3 itself. 4, 1 is a factor, 2 is a factor and then 4 is also a factor. So 1 के फैक्टर्स कितने हुए? Exactly 1. 2 के फैक्टर्स कितने हुए? Exactly 2. 3 के फैक्टर्स कितने हुए? Exactly 2. और 4 के फैक्टर्स कितने हुए? Exactly 3. Now coming to 5. 5 also has 2 factors, 1 and 5. 6 has 1, 2, 3 and 6, total 4 factors. Total 4 factors. 7 also has exactly 2 factors, 1 and 7. 8 has 1, 2, 4 and 8, total 4 factors. And so on, we can see for other numbers as well. In general, अगर हम categorize करें, so either some number which is 1 has 1 factor, or in all the other cases, either the number of factors is equal to 2 or more than 2. So अगर number of factors के basis पे categorize करें numbers को, so if I categorizing natural numbers on the basis of factors, on basis of number of factors, so there are 3 categories. One category is exactly 1 factor. Second category is 2 factors. And third category is greater than 2 factors. First category is exactly 1 factor. और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक केस में होगा for number 1. The only element in first category is number 1 itself. तो number 1 का exactly 1 factor है. Second category and the very important category is when we have exactly 2 factors. और 2 factors क्या होंगे? 1 and number itself. 1 and that number itself. And this category numbers are called prime numbers. Prime numbers, for example, 2, 3, 5, 7, 11 and so on. These all are prime numbers. The third category numbers are with factors greater than 2. So either there are 3 factors or 4 factors or 5 factors and so on. Any number of factors greater than 2 are in the third category and those numbers are called composite numbers. Composite numbers are composed of prime numbers. Or we can also say that they are always a product of 2 numbers smaller than that number. ठीक है? So these are always a product of
two smaller numbers. For example, 4, 6, 8, 9, 10 and so on. क्या यहां तक बात समझ में आती है? Is it clear? Okay, so 1 is a special number because 1 is neither composite nor prime. Neither prime nor a composite number. So smallest prime number कौन सा हुआ? 2 is the smallest prime number. Smallest prime and only even prime number. क्योंकि बाकी सारे इवन नंबर्स तो 2 के मल्टीपल हैं. So they are composite numbers, but 2 is the smallest prime number and only even prime number. Smallest odd prime number is 3. Now there is a beautiful depiction of prime and composite numbers. You can observe that 4 is 2 into 2. 6 is 2 into 3. 8 is 2 into 4. बस देखने में ब्यूटीफुल लग रहा था तो शेयर कर दिया. ठीक है, 3 into 3 and this is 2 into 5 and 12 is 3 into 4. And you can see बेचारे प्राइम नंबर्स सारे के सारे एक रो में है बिकॉज 1 into 2, 1 into 3, 1 into 5, 1 into 7 and 1 into 11 in this depiction. Now let us see some prime numbers from 1 to 100. So from 1 to 50, there are total 15 prime numbers. Starting from 2, then 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47. Total 15. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 and then 31, 37, 41, 43 and 47. Between 1 and 50. From 51 to 100, there are total 10 more prime numbers. And you should be comfortable and well versed by all these 25 prime numbers. तो अपने एंड पे भी इनको एक बार दो बार प्रैक्टिस करके लिख के देखना. ठीक है, अपने एंड पे भी जरूर लिख के देखना इनको, ताकि ऐसा नंबर तुम्हें कभी भी दिखे तो यू नो दैट दिस इज अ प्राइम नंबर. स्टार्टिंग फ्रॉम 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. So these are 10 more prime numbers. Total 25 prime numbers from 1 to 100. Total 25 prime numbers are there. Okay. ठीक है. Smallest 3-digit prime number क्या होगा? Smallest 3-digit prime number क्या होगा? 100 तो प्राइम है नहीं, इवन नंबर है. 101 इज द स्मॉलेस्ट 3-digit प्राइम नंबर. लार्जेस्ट 3-digit प्राइम नंबर कौन सा होगा? Now 999 is not a prime number. 998 is the even number. 997 is the largest 3-digit prime number. Smallest 4-digit prime number. Smallest 4-digit prime number 1001. 1000 से स्टार्ट करते हैं. 1000 तो इवन नंबर है तो उसको तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. 10 का क्यूब भी है एडिशनली. 1001 is a very special number. This is 7 into 11 into 13. So this is a composite number.
ये कॉम्पोजिट नंबर है। एक और चीज 1001 इज ऑल्सो 10 क्यूब प्लस 1, और वी कैन राइट दिस एज 10 क्यूब प्लस 1 क्यूब विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो अगर a क्यूब प्लस b क्यूब को हम दो पार्ट से फैक्टराइज कर सकते हैं हमेशा, तो दिस विल ऑलवेज बी कॉम्पोजिट अनलेस a और b दोनों को 1 कर दो, ठीक है। इफ a एंड b बोथ आर 1 तब फिर ये 2 आ जाएगा, अदरवाइज बाकी सारे के सारे केसेस में इट विल ऑलवेज बी a क्यूब प्लस b क्यूब विल ऑलवेज बी अ कॉम्पोजिट नंबर, ऑलवेज अ कॉम्पोजिट except when a is equal to b is equal to 1, otherwise बाकी सारे केसेस में this will be composite। so this is 10 cube plus 1 cube, so this will always be composite, ठीक है। बाकी फैक्टराइज क्या फैक्टर्स होंगे वो तो मैटर नहीं करता। और अगर ये समझ में आ रहा है तो अगर हम नंबर लिखें 1 followed by 5 zeros and then a 1, so this can also be written as 1 followed by 6 zeros plus 1, so this is 10 to the power 6 plus 1। तो थिंक अबाउट इट, क्या ये कॉम्पोजिट नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा? क्या ये कॉम्पोजिट होगा या प्राइम होगा? अगर बात समझ में आई होगी तो यू कैन राइट दिस एज 10 स्क्वायर यानी 100 होल क्यूब प्लस 1 क्यूब। सो a इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, b इज इक्वल टू 1, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉम्पोजिट नंबर। ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर होगा, विदाउट अ डाउट। कुछ और टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी और टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमने लिया 10 क्यूब माइनस 3 क्यूब, तो डेफिनेटली कॉम्पोजिट नंबर होगा। क्या नंबर आएगा? दिस इज 1000 माइनस 27, दैट इज 973। या 10 क्यूब माइनस 1 क्यूब विच इज 999, ऑब्वियसली कॉम्पोजिट नंबर। 10 क्यूब माइनस 5 क्यूब, वो तो लार्ज एज 5 आएगा, तो डेफिनेटली दैट विल आल्सो बी कॉम्पोजिट नंबर, डिविजिबल बाय 5 तो वैसे ही दिख रहा है, वैसे ही होगा। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो कि तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब बात कर रहे थे हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर की, तो 1000 तो नहीं है, 1001 नहीं है, 1002 होगा नहीं बिकॉज दैट इज अ इवन नंबर। 1003 टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। अब कैसे टेस्ट करेंगे? हाउ टू टेस्ट वेदर नंबर इज प्राइम और अ कॉम्पोजिट नंबर? टेस्ट क्या होगा? सो प्राइम नंबर टेस्ट, we must make a salient observation. Let us say 36 को हम फैक्टराइज करते हैं। 36 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 36 और 2 इंटू 18 और 3 इंटू 12 और 4 इंटू 9 और 6 इंटू 6। So in all these cases, if you observe, 36 will always be composed by two numbers which are smaller than that, है कि नहीं? Which are smaller than or equal to that. Okay? But in सारे के सारे cases में there will be one number, exactly one number, which is less than or equal to square root of 36. And second number, first number होगा less than equal to square root of 36 और second number होगा हमारा greater than or equal to square root of 36. There will always be two numbers. एक नंबर हमारा स्क्वायर रूट से छोटा होगा और एक नंबर स्क्वायर रूट से बड़ा होगा। तो अगर हमें 36 का टेस्ट करना है whether it is a prime number or composite number, so we should take square root of 36. which is equal to 6, और फिर 6 और उससे छोटे नंबर से हमें टेस्ट करना है whether 36 is divisible by any of that number। अगर उनमें से किसी भी नंबर से 36 डिविजिबल होगा, in that case 36 is a composite number। अगर डिविजिबल नहीं होगा then it is a prime number, because definitely always factors पेयर में एग्जिस्ट करेंगे और उनमें से एक नंबर हमारा स्क्वायर रूट से छोटा होगा या इक्वल होगा और सेकंड नंबर हमारा स्क्वायर रूट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इज दैट मच क्लियर? ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। Let us say we take a random number 457 and we want to test whether 457 is a composite number or a prime number. So सबसे पहला काम, let us estimate square root of 457। एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं जानना है, स्क्वायर रूट का एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए हमें। 20 का स्क्वायर कितना है? 400। 21 का स्क्वायर 441, तो दिस विल बी समवेयर बिटवीन 21 एंड 22। 21 से 22 के बीच में होगा 457 का स्क्वायर रूट। तो 21, 22 बेसिकली 22 से छोटे नंबर्स को हम टेस्ट करेंगे कि क्या उनमें से कोई नंबर ऐसा है विच इज डिविजिबल, विच इज
अ फैक्टर ऑफ 457, 21 से छोटे, और हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स को टेस्ट करेंगे. वी विल ओनली बी टेस्टिंग प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 21, बिकॉज 22 क्या है, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर. 21 भी एक प्राइम नंबर नहीं है. तो बेसिकली कितने प्राइम नंबर्स हमारे पास बचे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19. वी ओनली हैव टू टेस्ट दीज 8 नंबर्स. इसके अलावा किसी नंबर से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. क्या 2 से टेस्ट करना पड़ेगा? 2 से डिविजिबल होता तो इवन ही हो जाता. 2 से डिविजिबल है नहीं. 3 की डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे. फॉर 3 चेक सम ऑफ डिजिट्स. तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, 4 + 5 इज 9, 9 + 7 इज 16. सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 16, जो कि 3 से डिविजिबल है नहीं, यानी कि 3 से भी डिविजिबल होगा नहीं. 5 की डिविजिबिलिटी भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. एनी नंबर डिविजिबल बाय 5 विल हैव यूनिट डिजिट 5 और 0, जो कि इस केस में नहीं है. दैट इज व्हाई दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5. 7 से टेस्ट करोगे, 7 6 are 42, 37 बचा, 7 से भी डिविजिबल नहीं है. 11 से टेस्ट करोगे, 44, 17 नहीं है 11 से डिविजिबल. 13 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करो, 13 3 are 39, 67 बचा, 2 रिमाइंडर बचेगा नॉट डिविजिबल. 17 2 are 34 और फिर बचेगा हमारा 117. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 17 इधर. लास्ट बट नॉट लीस्ट 19 से टेस्ट किया, 19 2 are 38 बचा 77, 76 यानी कि 1 रिमाइंडर यहां भी बचेगा. सो 19 से भी डिविजिबल नहीं है. सो दिस इज डेफिनेटली अ प्राइम नंबर. 457, दिस मस्ट बी अ प्राइम नंबर. ओके, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या 1003 हमारा डिविजिबल होगा किसी नंबर से लेस देन दैट स्क्वायर रूट, यानी कि ये प्राइम होगा या कॉम्पोजिट होगा? कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर रूट एस्टिमेट करोगे 1003 का, रफली आएगा 32, बिकॉज 32 का स्क्वायर इज 1024, 2 to the power 10, 1024. ठीक है. 32 से छोटे प्राइम नंबर से हमें टेस्ट करना है, 1003 को डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है. ओके, 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है, सम ऑफ डिजिट्स 4 आ रहा है. 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से होगा नहीं. 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करोगे, 7 से होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 1001 हमारा खुद इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 11 एंड 13. तो अगर हमें ऑलरेडी पता है 7 का मल्टीपल है 1001, तो अगला 7 का मल्टीपल कब आएगा? +7 करोगे तब, यानी 1008. सो 1008 विल बी अ मल्टीपल ऑफ 7. उसके बीच में तो कहीं आना नहीं, तो 7 से तो डिविजिबल हो नहीं सकता. सो नॉट डिविजिबल बाई 7. सिमिलरली 11 का मल्टीपल है 1001, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता 1003, बिकॉज 11 से डिविजिबल हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1001 + 11, 1012. सो नॉट डिविजिबल बाई 11 ईदर. बाय द सेम लॉजिक 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा. 17 से टेस्ट कर लो, 17 5 are 85, फिर बचता है 153. तो यस, दिस इज डिविजिबल बाई 17. 17 से डिविजिबल आ रहा है, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट होगा. कॉम्पोजिट हो जाएगा बिकॉज दिस इज 17 इंटू 17 5 are 85 और फिर बच जा रहा है 153, विच इज तो 17 इंटू 59. दिस नंबर इज 17 इंटू 59. ओके, नेक्स्ट 1005 डिविजिबल है 5 से, तो मल्टीपल ऑफ 5 है. 1007 को टेस्ट करोगे, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 11 13 से हो नहीं सकता. अभी हमने लॉजिक समझ लिया है. 15 तो प्राइम ही नहीं है. 17 से टेस्ट करोगे, और 17 का भी है, क्योंकि हमें पता है 1003 17 से डिविजिबल है, तो 1007 नहीं हो सकता. तो टेस्ट बाय 19, 19 5 are 95 और फिर बच जाएगा हमारा 57. तो यस, 19 से दिस इज डिविजिबल. दिस इज 19 इंटू 53. So yes, divisible by 19, hence this is also not prime and this is a composite number. एक composite number है. So the first composite number, the smallest 4-digit composite number, prime number, smallest 4-digit prime number will be 1009. ठीक है. 1009 को अगर टेस्ट करोगे अपने एंड पे, एक बार टेस्ट करके ट्राई कर लेना, तो 1000 हमारा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा. देखो, 3 से हो नहीं सकता, 2 से हो नहीं सकता, 5 से हो नहीं सकता, 7 11 13 अभी हमने लॉजिक समझ लिया, उनसे भी होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 7 से 1008 हो रहा है, 1009 हो नहीं सकता. 11 13 11 से 1012 होगा, नहीं हो सकता. 13 से नहीं हो सकता. 17 से 1003 हुआ था, नहीं हो सकता. 19 से 1007 हुआ है, नहीं हो सकता. फिर बचा हमारा 23 से टेस्ट कर लो, हो रहा है क्या? 23 4 are 92, बचता है हमारा 89, नहीं हो रहा है. ठीक है. 29 से टेस्ट करो, 29 3 are 87, बचता है 139, उससे भी नहीं हो रहा है. सो डेफिनेटली दिस इज अ प्राइम नंबर.
डेफिनेटली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 1009 और 4 डिजिट्स। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो यहाँ पे हमने टेस्ट भी सीख लिया कि कैसे हम प्राइम नंबर्स को टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर अ नंबर इज प्राइम और अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्या ये पार्ट क्लियर है? नाउ लेट अस डिस्कस जनरल फॉर्म ऑफ अ प्राइम नंबर। जनरल फॉर्म ऑफ अ प्राइम नंबर। So if a prime number is greater than or equal to 5, this can always be represented as 6 का multiple plus minus 1. Any prime number that is greater than or equal to 5 can always be represented as a multiple of 6 plus minus 1. Or in general, we can say that it will always be either 6 का multiple plus 1 or 6 का multiple minus 1, which can also be written as 6 का मल्टीपल प्लस 5। यानी कि 6 से डिवाइड करोगे किसी प्राइम नंबर को, दैट विल ऑलवेज गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ 1 और 5, दैट इज फॉर श्योर। बट ऐसा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है व्हेन प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि 2 and 3 को छोड़ के, एक्सेप्ट 2 and 3, एक्सेप्ट 2 and 3, बिकॉज 2 and 3 इस फॉर्म में लाई नहीं करेंगे। ओके, लॉजिक क्या है इसके पीछे का? द लॉजिक इज कि अगर हम किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, इधर इट विल बी मल्टीपल ऑफ 6 और इट विल बी 6 का मल्टीपल प्लस 1, या फिर 2 रिमाइंडर देगा, या फिर 3 देगा, या फिर 4 रिमाइंडर देगा, या फिर 5 रिमाइंडर देगा। 6 रिमाइंडर देगा नहीं, बिकॉज अगेन नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 आ जाएगा। अब अगर ये मल्टीपल ऑफ 6 ऑलरेडी है हमारा नंबर, तो दैट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, डेफिनेटली प्राइम थोड़ी होगा, कॉम्पोजिट होगा। इफ दिस इज 6 का मल्टीपल प्लस 2 तो इवन है, और अगर इवन है यानी कि कॉम्पोजिट है अगेन, बिकॉज 2 से डिविजिबल है। 6 का मल्टीपल प्लस 4 है, अगेन इवन है, तो ये भी कॉम्पोजिट ही होगा। और 6 का मल्टीपल प्लस 3 है, सो दिस इज डिविजिबल बाई 3, बिकॉज 6 का मल्टीपल है, 6 खुद 3 का मल्टीपल है, और साथ में 3 एडिशनल है, तो भी 3 से डिविजिबल है, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉम्पोजिट बिकॉज डिविजिबल बाई 3 है। तो बच जाते हैं हमारे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज, दैट इज 6 का मल्टीपल प्लस 1 एंड 6 का मल्टीपल प्लस 5। दैट इज वाई वी आर सेइंग that a general prime number will always be either 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा और 1 लेस, so 6k plus minus 1। Is that clear? क्या लॉजिक समझ में आता है? Very important that this is the condition that is necessary but not sufficient. Necessary but not sufficient। यहां पे हम ये भी डिस्कस करेंगे इस बात का मतलब क्या हुआ। नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी होने का मतलब यह है कि any prime number that is greater than or equal to 5 must be in the form of 6 का multiple plus minus 1. So if a number is not in this form, then that will not be a prime number. If a number is greater than 5 and is not in a form of 6k plus minus 1, then that will for sure will not be a prime number. For example, अगर हमने एक नंबर लिया, let's say 105, okay? If we divide 105 by 6, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा? 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 6, बचा 45, रिमाइंडर बचा हमारा 3, so this is divisible by 3, not prime। सबसे पहले तो इतना ही टेस्ट करना है, सिर्फ इतना ही देखना है 6 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बच रहा है। अगर इवन है तब तो उतना भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इवन है तो प्राइम हो ही नहीं सकता, ठीक है, इवन है तो प्राइम हो ही नहीं सकता, और द ओनली इवन प्राइम इज 2। ओके, सो सबसे पहले तो ये टेस्ट करना है। और अगर 6 का डिवाइड करने के बाद में 1 या -1 या बेसिकली 1 and 5 रिमाइंडर बच रहा है, देन हमें फिर टेस्ट करना है कि वेदर दैट इज अ प्राइम और नॉट प्राइम, ठीक है। सो नेसेसरी कंडीशन है, यानी कि दिस इज मस्ट, बट सफिशिएंट नहीं है, यानी कि देयर विल बी मेनी सच नंबर्स विच आर 6 का मल्टीपल प्लस 1 और 6 का मल्टीपल -1, बट दे विल नॉट बी प्राइम, ठीक है, नॉट सफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से देयर इज अ नंबर, क्या नंबर लें, हाँ 35, okay, so 35 is 36 minus 1, but this is a multiple of 5, so not a prime number still, prime number थोड़ी है, composite है, okay, ठीक है। Similarly 49, this is 48 plus 1, 6 का multiple plus 1, but this is not a prime number, so there will be many such numbers which are in this form but not prime, but every
number, every prime number greater than or equal to 5 will always be in this form. That is why this condition is necessary but not sufficient. तो इस लाइन को, इस बात को समझना है अच्छे से, ठीक है, कि necessary but not sufficient कंडीशन का मतलब क्या हुआ. ओके, और 2 और 3 तो एक्सेप्शन है, तो उनको तो वैसे ही अलग से समझना है. क्या यहां तक बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं ट्विन प्राइम्स की. ट्विन प्राइम नंबर्स. So any two prime numbers at a gap of 2 are called twin prime numbers. For example, 3 and 5, these are twin primes, basically two consecutive primes, 3 and 5, or 5 and 7, or 11 and 13, or 17 and 19. And always twin primes will be in the form 6k minus 1 and 6k plus 1, except an exception, जो कि सबसे पहला केस है हमारा 3 और 5 वाला. बाकी सारी केसेस में these will always in the form 6k minus 1 and 6k plus 1. तो पहला प्राइम हमारा 6k minus 1 के फॉर्म में होगा, दूसरा होगा 6k plus 1 के फॉर्म में, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स 3 and 5, बिकॉज 3 and 5 के केस में ऐसा नहीं है. ऑल्सो 2 and 3 आर नॉट ट्विन प्राइम्स, बिकॉज उनके बीच का गैप 2 नहीं है, सो दे आर नॉट ट्विन प्राइम्स. तो कभी अगर क्वेश्चन में आता है जस्ट इन केस, तो तुम्हें पता होना चाहिए ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं. तो 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, दीज आर ट्विन प्राइम्स. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर सेशन को रैप अप करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, okay, first question, from the set of all 2-digit prime numbers, how many pairs of primes are there that add up to a prime number? Pause the video and try to solve it yourself first. From the set of all 2-digit prime numbers, how many pairs of primes are there that add up to a prime number? यानी कि prime number 1 plus prime number 2 से हमारा क्या रिजल्ट बनना चाहिए? There should be another prime, जो कि हमारा रिजल्ट बने. कितने ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे? And we are talking about all 2-digit prime numbers. तो 2-digit प्राइम नंबर्स जितने भी होंगे, क्या सारे के सारे ऑड होंगे या नहीं होंगे? क्या सारे प्राइम नंबर्स हमारे ऑड होंगे कि नहीं होंगे? सो वी आर बेसिकली एडिंग 2 ऑड नंबर्स, ऑड 1 प्लस ऑड 2. क्या रिजल्ट बनेगा? रिजल्ट विल ऑलवेज बी इवन. और 2-digit प्राइम नंबर्स को ऐड करके क्या तुम कभी कोई एक ऐसा इवन प्राइम नंबर बना सकते हो क्या? नॉट पॉसिबल, बिकॉज ओनली इवन, सो दिस कैन नॉट बी प्राइम, बिकॉज ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, जो कि सिंगल डिजिट का है. ऐड करने से तो कभी नहीं बन सकता. प्राइम नंबर इज 2. हाँ, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो केस बन जाते, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो ऐसे केसेस बन जाते, बिकॉज अगर ट्विन प्राइम्स होते तो वहां पे हमारा डेफिनेटली गैप 2 आ जाता, तो सब्ट्रैक्ट करने पे केसेस बन सकते थे. इफ सब्ट्रैक्शन होता तो डेफिनेटली वहां पे हमारा इवन नंबर यानी कि 2 बन जाता, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, बट क्योंकि ऐड कर रहे हैं, दैट इज वाई द सॉल्यूशन देयर विल बी 0 सॉल्यूशन, नो सच सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. बट सब्ट्रैक्शन के केस में वी विल बी गेटिंग ट्विन प्राइम्स एज सॉल्यूशंस. एज सॉल्यूशंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इफ द गिवन नंबर इज प्राइम और अ कॉम्पोजिट नंबर. फर्स्ट इज 473. ठीक है, 473. अब तो टेस्ट कर लोगे तुम अपने एंड पे, ये प्राइम होगा या नहीं होगा. ठीक है, 473 सबसे पहले 2 से तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑड है. 3 से क्या डिविजिबल हो रहा है? 4, 7, 11 प्लस 3 14, 3 से डिविजिबल नहीं है. सबसे पहले स्क्वायर रूट निकाला 473 का, कितना आएगा? 22 के आसपास आ रहे हैं. तो 22 से छोटे प्राइम नंबर्स को टेस्ट करना है. 3 से पॉसिबल नहीं है, 5 से पॉसिबल नहीं है, 7 से हो सकता है क्या? 7 490 से 17 छोटा है, नहीं पॉसिबल है 7 से भी. 11 से डिविजिबल है क्या? एक सेकंड, क्रॉस को लगा दिया पहले से. क्या 11 से डिविजिबल है? 11 4 जार 44, बचा 3, तो यस दिस इज डिविजिबल बाय 11. दिस इज 11 इंटू 43, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट है. सेकंड केस तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 1001 इज अ इंटरेस्टिंग केस. और 1001 में हमें क्या पता है? दैट दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 11 एंड 13, सो दिस इज obviously a composite number.
1403 नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट बाई 5, क्या नॉट डिविजिबल बाई 7 बिकॉज 1400 7 का मल्टीपल है, तो 1400 प्लस 3 तो नहीं हो सकता 7 का मल्टीपल, 1400 प्लस 7 हो सकता है, 1400 प्लस 14 हो सकता है, 7 का मल्टीपल नहीं है। 11, क्या ये 11 का मल्टीपल है, तो 11 का भी मल्टीपल नहीं है। 13 के बाद बचा हमारा 10, नो 13 का भी मल्टीपल नहीं है। और अगेन स्क्वायर रूट तो लेना पड़ेगा ना, 1403 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, रफली कितना आएगा, 35, 36, 36 का स्क्वायर होता है 1296, सो अराउंड 38 के आसपास की वैल्यू आ गई। तो 38 से छोटे प्राइम नंबर से टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। 11 से टेस्ट कर लिया, 13 से टेस्ट कर लिया, 17, तो 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136 नहीं है 17 का मल्टीपल, 19, सो 19 5 95, 114, 133, 73, 19 का भी मल्टीपल नहीं है। देन 23, 23 इंटू 6 138, यस 23 का मल्टीपल आ रहा है, तो दिस इज 23 इंटू 61, so again a composite number, this is also composite. Next question, 213 213, so if this number is composite or prime, pause करके अपने एंड पे सॉल्व करो पहले। देखो दिस नंबर कैन बी रिटन एज इफ देयर इज एनी नंबर इन द फॉर्म ABC that is always ABC the number multiplied by 1001, और यहाँ पे जो डिजिट्स हैं these are ABC, ठीक है। सो दिस नंबर 213 213 इज इन द फॉर्म 213 इंटू 1001, और अगर 1001 का मल्टीपल है तो 1000 खुद एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये तो कॉम्पोजिट होगा ही होगा, दिस विल ऑलवेज बी कॉम्पोजिट। और ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि एनी नंबर इन द फॉर्म ABC इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ ABC, ओके, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर फॉर श्योर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 1 के बाद 5 zeros फॉलोड बाई 1, इसको तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर ओनली। द थर्ड केस 5 to the power 121 प्लस 3 to the power 21, ये कॉम्पोजिट होगा या फिर प्राइम होगा, सोच के बताओ, पॉज करके अपने एंड पे जरूर इसको एक बार टेस्ट करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो, ठीक है। बहुत इजी है, बट एक बार अपने एंड पे अपना दिमाग चलाओगे तब तो समझ में आएगा, ठीक है। सो 5 to the power 121 प्लस 3 to the power 21, क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे, 5 की पावर 121 है तो दिस विल बी ऑड नंबर, ऑड होगा। 3 की पावर 21, दिस विल ऑल्सो बी ऑड नंबर, और ऑड में तुम जोड़ रहे हो ऑड, तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा, और अगर इवन आ रहा है यानी डिविजिबल बाई 2 है, और डेफिनेटली 2 से बड़ा नंबर है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स है, तो डेफिनेटली दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट होगा ये भी, ओके, ठीक है। Next, if a plus 2 and a plus 4 are prime numbers, then the number of possible solutions for a is how many? A plus 2, a plus 4, these are all prime numbers, so number of possible solutions for a कितने होंगे, कितने possible solutions होंगे? So basically यहाँ पे हमारे a plus 2 and a plus 4 basically 3 twin primes टाइप के लग रहे हैं, because these are twin primes, these are twin primes, क्या ऐसा possible है? बिकॉज 5 से बड़े नंबर्स के लिए हमें पता है इफ प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो सारे प्राइम नंबर्स हमारे किस फॉर्म में होते हैं, 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होते हैं, यानी कि अगर हमारा एक प्राइम मिल रहा है हमें 6k माइनस 1, नेक्स्ट विल बी 6k प्लस 1, नेक्स्ट क्या 6k प्लस 3, क्या ये प्राइम हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर हो सकता है केस 6k प्लस 1, 6k प्लस 3, 6k प्लस 5, अब ये दोनों तो प्राइम होना पॉसिबल है, बट क्या बीच वाला प्राइम होना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो यानी कि ऐसा केस हमारा तब कभी भी नहीं बनेगा व्हेन द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि उसे छोटे केसेस में हमें चेक करना पड़ेगा। सो इफ वी टेक a इज इक्वल टू 2, तब तो सारे नंबर्स इवन आ जाएंगे, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। इफ वी टेक a इज इक्वल टू 3, नंबर्स आ जाएंगे 3 5 7, यस ऑल ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, और अगर a इक्वल टू 5 ले लोगे तब तो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज a इज इक्वल टू 5 पे आ जाएगा 5 7 9, और उससे बड़े भी किसी भी सॉल्यूशन पे पॉसिबल नहीं है। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज व्हेन a इज इक्वल टू 3, the only possible case, there will be only one solution, only one solution for this question, okay, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A positive integer is said to be a prime number if it is not divisible by a positive integer other than itself and 1. Let p be a prime number greater than 5, then p square minus 1 के लिए conditions given है. p एक prime number है, p square minus 1 के लिए conditions given है कि whether it is never divisible by 6, whether it is always divisible by 6 and may or may not be divisible by 12, always divisible by 12 and may or may not be divisible by 24 और always divisible by 24. इनमें से कौन सा केस बनेगा, कौन सा केस बनेगा p स्क्वायर माइनस 1 के लिए. अब p के लिए हमें ये बात तो पता है कि p इज इधर 6 का मल्टीपल प्लस 1 और 6 का मल्टीपल माइनस 1. दो ही केसेस हैं. स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर कर दो. तो अगर स्क्वायर कर दोगे तो p स्क्वायर हमारा होगा इधर 6k प्लस 1 का होल स्क्वायर और 6k माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो p1 मान लेते हैं अपना 6k प्लस 1, तो p1 स्क्वायर आ जाएगा हमारा 6k होल स्क्वायर यानी 36k स्क्वायर प्लस 6k इंटू 1 इंटू 2 यानी 12k प्लस 1. और अगर p2 मान लिया 6k माइनस 1, ठीक है, इसको मान लो p2, दिस इज p1 एंड दिस इज p2, तो p2 होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा 36k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 1. सो p1 स्क्वायर माइनस 1 विल बी 36k स्क्वायर प्लस 12k. प्लस 1 में से माइनस 1 कर दिया तो ये तो कांस्टेंट वाला टर्म रिमूव हो गया. सिमिलरली p2 स्क्वायर माइनस 1 विल बी 36k स्क्वायर माइनस 12k. नाउ वी कैन टेक 12k एज कॉमन. तो 12k को कॉमन ले लिया, इनसाइड हमारा वैल्यू बच गया 3k प्लस 1. यहां पे कॉमन लिया 12k को तो बच गया 3k माइनस 1. ओके, अब ये तो पता चल रहा है हमें कि मल्टीपल ऑफ 12 तो फॉर श्योर है क्योंकि k भी एक इवन नंबर है और 3k प्लस 1 भी एक इवन नंबर है, तो 12 का मल्टीपल तो फॉर श्योर होगा. तो ऑप्शन ए तो गलत है, नेवर डिविजिबल बाय 6, बिकॉज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 आ रहा है. अगर 12 का मल्टीपल आ रहा है 6 का मल्टीपल तो है ही है. ठीक है, तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 ये तो करेक्ट है ऑप्शन बी में. फिर लिखा है मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय 12 बट इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 एज वेल. तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 12. ओके, ऑप्शन सी ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय 24 और ऑप्शन डी है ऑलवेज डिविजिबल बाय 24. तो सी आंसर होगा या डी आंसर होगा, ये हमें टेस्ट करना पड़ेगा. टेस्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली सी मार्क नहीं कर देना है. टेस्ट करके देखना पड़ेगा क्या हमेशा डिविजिबल होगा 24 से या हमेशा डिविजिबल नहीं होगा, कुछ कुछ केसेस में डिविजिबल होगा. ठीक है, क्योंकि अभी हम ये बात फॉर श्योर कंक्लूड नहीं कर सकते हैं. ओके, सो फोकस करो ऑन दिस पार्ट क्योंकि 12 से डिविजिबल तो आ रहा है कि k इंटू 3k प्लस 1, क्या ये हमारा 2 का मल्टीपल होगा या फिर नहीं होगा. बिकॉज अगर ये 2 का मल्टीपल हो गया तो हमारा पूरा नंबर 24 से डिविजिबल हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये नंबर हमारा 2 का मल्टीपल हो गया तो हमारा पूरा नंबर 24 से डिविजिबल हो जाएगा. बट अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं हुआ यानी कि ऑड नंबर रहा, 2 का मल्टीपल यानी कि इवन नंबर, सो इफ द प्रोडक्ट k इंटू 3k प्लस 1 इज अ इवन नंबर देन वी आर श्योर दैट ये 24 से डिविजिबल होगा. ठीक है, और फिर यही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे k इंटू 3k माइनस 1 में भी, अदरवाइज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 24. ओके, सो इफ k इज ऑड, दो ही केसेस होंगे. अगर k हमारा ऑड होगा तो 3k भी ऑड होगा, लेकिन 3k ऑड है और उसमें तुम 1 ऐड कर रहे हो तो 3k प्लस 1 क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा. और ऑड में इवन मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, इवन आएगा. इवन यानी कि मल्टीपल ऑफ 2. तो 12 से ऑलरेडी डिविजिबल है, 2 का ही मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 24 हो जाएगा. कब होगा, जबकि k एक ऑड नंबर है. अगर k एक इवन नंबर हुआ तो 3 इंटू k भी इवन होगा, बट इवन में तुम 1 ऐड कर रहे हो यानी कि बना रहे हो ऑड, तो नेक्स्ट नंबर ऑड हो जाएगा. बट वैसे भी नेक्स्ट नंबर क्या होता है इससे फर्क नहीं पड़ता, एक नंबर हमारा इवन हो गया तो प्रोडक्ट तो हमेशा इवन होगा. तो सेकंड केस में तो डेफिनेटली इवन आ रहा है, दोनों ही केसेस में हमारा नंबर इवन आ रहा है. तो दैट इज वाई दिस विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 24. सेम लॉजिक अप्लाई होगा यहाँ पे. 12 का मल्टीपल ऑलरेडी है, बस चेक करो तुम k इंटू 3k माइनस 1 में. अगर k को हमने ऑड रखा 3k विल बी ऑड, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3k माइनस 1 इवन आ जाएगा. सो ऑड इंटू इवन विल बी इवन. सेकंड केस में जब k इवन हो जाएगा तो फर्क ही नहीं पड़ता 3k माइनस 1 क्या है, वैसे होगा ऑड, तो इवन इंटू ऑड विल ऑल्सो बी इवन. यानी कि सारे के सारे केसेस में ऑलवेज वेदर हमारा नंबर 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है या 6 के मल्टीपल से 1 कम है, इन ऑल सच केसेस वेदर हमारा k ऑड है या इवन है, इन ऑल सच केसेस हमारा नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 24 आ रहा है. तो आंसर विल बी डी एंड नॉट सी. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी डी. तो डी हमारा आंसर हो जाएगा ऑलवेज डिविजिबल बाय 24. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, एक चीज हम और कर सकते थे बट वो जो सेकंड मेथड है वो हमें सर्टेन आंसर नहीं देगा, ये मेथड हमें सर्टेन आंसर दे रहा है. बट एक चीज है जो कि हम एग्जाम में कभी कभी यूज भी कर सकते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यूज को पुट करके भी चेक कर लें. ठीक है, वैल्यूज को पुट करके भी चेक कर लें. सबसे पहली कंडीशन क्या है, p बी ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5. तो कोई एक नंबर प्राइम नंबर ले लो, जैसे p इज इक्वल टू 7 ले लिया, p स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 48.
तो 48 तो हमारा 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है, इवन 48 तक से डिविजिबल आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लो, p इज इक्वल टू ले लिया 11, तो p स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 121 माइनस 1 यानी कि 120, अगेन दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 24। ठीक है, ज्यादा है तो एक और एग्जाम्पल ले लो, p इज इक्वल टू 13, तो p स्क्वायर माइनस 1 भी 168 विच इज अगेन डिविजिबल बाई 24, यानी कि हमारे अब तक के सारे एग्जाम्पल 24 से डिविजिबल आ रहे हैं, तो चांसेस आर कि ऑलवेज डिविजिबल बाई 24 हो सकता है, बट यहां से हम सर्टेन नहीं हो सकते। लॉजिक तो देखो यही वाला काम करेगा, ठीक है, लॉजिक तो यही काम करेगा, दिस इज द लॉजिकल अप्रोच, बट कभी कभी एग्जाम में ऐसी अप्रोचेस भी वैल्यूज पुट करके भी हमें सॉल्व करना पड़ सकता है, और ऑप्शन पे डिपेंड करता है हमारा आंसर क्या होगा। बहरहाल इस क्वेश्चन में आंसर इज ऑप्शन डी। क्या लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन, एंड आई बिलीव इस सेशन में बहुत कुछ तुम्हें नया सीखने को मिला होगा और काफी सारी चीजें अप्रिशिएट कर पाए होगे। एंड यू कैन ऑलवेज शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट्स। अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल, या फिर मुझे मैसेज करना है इफ यू हैव एनी डाउट्स और कंसर्न्स रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, यू कैन मैसेज मी ऑन ADITYAKT, माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी, एंड दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।